Assalamu alaikum. Welcome back on Rati Educational Academy YouTube channel. Aurora University of Art, Architecture, Design and Heritage Sindh. Admissions are announced for a session fall 2025 round 1. I will share admission policy, eligibility criteria, BS programs, marks weightages, a test syllabus for the entry test, scholarships available, how to apply for the admissions, and how the merit list is prepared, and on what grounds additional marks are given to the students. So here we go. If you are new on the channel, please subscribe Rati Educational Academy YouTube channel for entry test preparation. The Aurora University of Art, Architecture, Design and Heritage Sindh grounds itself in merit as the basic criterion for selection of its students. In lieu of the set criterion determined by the competent authority, by the following admission policy is formulated for the year 2025. Admission to the second year session is made according to the policies and rules found by the authorities of the universities. The mentioned rules are subject to the revision. इनका यही मकसद है कि जो भी पॉलिसी जो भी एडमिशन्स दी जाएंगी वो इन पॉलिसीज़ इन रूल्स के मुताबिक दी जाएगी। सबसे पहले ऑल अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स आर रेगुलर फुल टाइम मॉर्निंग प्रोग्राम्स। नो स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द यूनिवर्सिटी इज़ अलाउड टू एंगेज इन द एम्प्लॉयमेंट आर मेंटेन साइमल्टेनियस एनरोलमेंट इन एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको सिर्फ इसके जो रेगुलर प्रोग्राम से फुल टाइम प्रोग्राम से उनमें ये एडमिशन मिलेगी और आपको कहीं और एम्प्लॉयमेंट जॉब करने का मौका नहीं मिलेगा जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती। और किसी और इंस्टीट्यूट में आप साइमल्टेनियसली एक साथ एडमिशन लेने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में एक वक्त एक ही एडमिशन हो सकता है। Admission in each discipline shall be granted purely on the basis of merit as prescribed in the admission notice and thereby admission policy. डिसिप्लिन्स जो भी आप चाहेंगे उसका जो क्राइटेरिया है एंट्री टेस्ट का या जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डेंस आपको एडमिशन मिलेगी। An applicant meeting the qualification criteria successfully or more than one discipline will need to select the preferred discipline as mentioned in the online application form. हम जल्द ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे कि क्या क्या करना है। सो स्टे कनेक्टेड। एडमिशन इन ईच डिसिप्लिन विल बी ऑफर्ड टू द कैंडिडेट्स इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। मेरिट के बुनियाद से जितने नंबर्स आप लेंगे, जो ज़्यादा नंबर लेगा उसको ज़्यादा चांसेस हैं एडमिशन का। The overall merit of candidates applying for any discipline for provisional admissions shall be determined on the basis of आपका जो मैट्रिक का स्कोर है, इंटर का स्कोर है और DAE अगर आपका किया हुआ है, इसके साथ साथ एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू, ये चार चीज़ें मिलाकर आपका जो एडमिशन वेटेज बनेगा, मार्क्स का वेटेज बनेगा। ये फर्दर मैं इस वीडियो में ही आपको बताऊंगा कि किस तरह बनता है ये। Original documents shall be produced by the student as a mandatory requirements at the time of interview. Students admitted are not to withdraw original HSC mark sheets and certificates before completion of degree. आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं इंटर के और मैट्रिक के वो आपको जमा कराने पड़ेंगे जब तक आप डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेते। डिटर्मिनेशन ऑफ मेरिट कैसे बनेगा इस यूनिवर्सिटी का, इस एडमिशन टेस्ट का। एंट्री टेस्ट all the candidates are seeking admissions under the following disciplines categories and fulfilling all pre-admission requirements are eligible to appear in aptitude test. The venue, date and time of test shall be mentioned in the admit card issued to each candidates. और नोट allocation of seats will be purely based on open merit without any description. जो जितने ज़्यादा नंबर लेगा उसको उतने ज़्यादा चांसेस हों एडमिशन के। टेस्ट syllabus for BS Civil Engineering, and this is only for BS Civil Engineering students, candidates who are applying for this program, and there will be 100 questions. Part 1 English 30 questions, Part 2 Mathematics 30 questions, Part 3 Computer 10 questions, Part 4 Physics 10 questions, Part 5 Chemistry 10 questions, and Part 6 General Knowledge 10 questions.
रति एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल पे इन सब पार्ट्स के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट पेपर्स और साथ में ही लेक्चर्स एमसीक्यूज़ अपलोडेड हैं, जो कि आपको इस टेस्ट में पास करने ये टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। अगर आपको इसके रिलेटेड प्रिपरेशन रिलेटेड मटेरियल चाहिए तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। टेस्ट सिलेबस फॉर ऑल अदर प्रोग्राम्स, अभी जो रिमेनिंग प्रोग्राम्स हैं इन प्रोग्राम्स में एडमिशन अनाउंस हुआ है। फैशन डिज़ाइन हो गया आपका बीएस फैशन डिज़ाइन, बीएस टेक्सटाइल डिज़ाइन, बीएस सेरामिक डिज़ाइन, बीएस मल्टीमीडिया एंड गेमिंग, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, इन्वायरमेंटल साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विजुअल आर्ट्स, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड टूरिज़म एंड हॉस्पिटलिटी। अभी इन प्रोग्राम्स में एडमिशन का जो टेस्ट सिलेबस है वो है syllabus test syllabus for all other programs including BS Fashion Design, BS Textile Design, BS Ceramic Design, BS Multimedia and Gaming, BS Architecture 5 years program, BS Environmental Sciences, BS Artificial Intelligence, BS Cyber Security, BS Visual Arts, BS History, BS Pakistan Studies, BS Archaeology and BS Tourism and Hospitality. These programs are offered for a session of fall 2025 round 1 और इनका जो टेस्ट होगा वो इस सिलेबस के मुताबिक होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 1 इंग्लिश 30 क्वेश्चंस, पार्ट 2 मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चंस, फॉर BS सिविल इंजीनियरिंग देयर विल बी 30 क्वेश्चंस, पार्ट 3 कंप्यूटर 10 क्वेश्चंस, पार्ट 4 जनरल साइंस 20 questions. For BS Civil Engineering, there will be 10 questions related to physics. Part 5 General Knowledge 20 questions. So you have to qualify the written test, entry test to get admission in Aurora University based on these 5 parts. एंड रति एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल पे इन सब सब्जेक्ट्स के हवाले से काफ़ी MCQs पास्ट पेपर्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपलोडेड हैं, जो कि आपको इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। तो ज़रूर देखें। The HSC curriculum shall be kept into considerations for pre-medical, pre-engineering, commerce, arts and humanities sections. जो भी आपका जो टेस्ट क्राइटेरिया है, टेस्ट सिलेबस है, जो क्वेश्चंस आएंगे वो HSC करिकुलम तक ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। There will be 60% weightage of the entry test score in CPN. Each correct answer will be awarded with 1 mark in the entry test. देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। टेस्ट के हवाले से टेस्ट की जो एंट्री टेस्ट की क्राइटेरिया है वो 60% है, एक सवाल पे 1 मार्क है और नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। द HSC नाउ कम्स अ मार्क्स वेटेज, percentage of marks and multiplying weightage, matriculation 10%, intermediate 20%, entry test 60% and interview 10%. So all the marks will be calculated based on these formula. Total 100%. Additional marks to Hafiz Quran. The candidates who have certificate of Hafiz Quran printed from किसी भी रजिस्टर्ड मदरसा से अगर आपके पास हाफिज़ कुरान का सर्टिफिकेट है, सनद है, तो आपको जो HSC परसेंटेज है, HSC की मार्क्स हैं उसमें 20 एडिशनल मार्क्स दी जाएंगी। डिडक्शन ऑफ मार्क्स ड्यू टू गैप इन एजुकेशन। अगर आपको जो इंटरमीडिएट है, जैसे कि अभी 2025 चल रहा है, 2024 के मुताबिक अगर 2024 में है तो सही है, अगर 2023 में किया होगा फिर जो आपकी CPN बनेगी उसका 1% डिडक्ट किया जाएगा। इस तरह से 2022 का 2% होगा और 2021 वाले होंगे तो उनका 3% डिडक्ट किया जाएगा। This deduction is applicable whether the HSC SSC examination had been repeated or gap had been considered.
और जो मिनिमम काउंट होगा वो 3 इयर्स का गैप काउंट होगा। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी एलिजिबल की? मेरिट लिस्ट फॉर ईच डिसिप्लिन विल बी नोटिफाइड एंड डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी नोटिस बोर्ड्स एंड विल बी आल्सो बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स द राइट्स कैंसिल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स द एप्टीट्यूड टेस्ट द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड for each discipline and candidates shall be called for an interview. Candidates must bring along the original testimonials at the time of interview. एंट्री टेस्ट के बाद जैसे ही रिज़ल्ट लगेगा तो आपको इंटरव्यू में हाज़िर होना है। अगर आप एब्सेंट रहेंगे या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आएंगे तो आपकी मार्क्स डिडक्ट की जाएंगी। The names of candidates who fail to appear for interview on the scheduled date and time without any intimation shall be deleted from the merit list. मेरिट लिस्ट में फिर उनको तरजीह नहीं दी जाएगी। The decision of admission committee shall be final. However, candidates में अपील, हाँ अगर आपका नाम नहीं आया तो आप 5 दिन के अंदर अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, कंप्लेन। The selected candidates shall submit these forms. जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे इसके बाद तो उनको ये 2 फॉर्म सबमिट कराने पड़ेंगे। सबसे पहले कि आइडेंटिटी कार्ड का प्रोफार्मा जो कि यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अवेलेबल है, अगर आपका एडमिशन हो जाए आप मुझसे भी ले सकते हैं, और एनरोलमेंट फॉर्म जो कि यूनिवर्सिटी का है। फॉर्म्स के आपको डिसिप्लिन कैसे मिलेगा? जो आप द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल चॉइस ऑफ डिसिप्लिन फॉर्म टू सिलेक्ट देयर प्रायोरिटी डिसिप्लिन वेरी केयरफुली। द चॉइसेस मेंशन्ड इन द ऑप्शन फॉर्म कैन नॉट बी चेंज्ड। डिसिप्लिन के जो ऑप्शंस हैं वो 3 से 4 होंगे, आपको चॉइसेस दी जाएंगी कि आप सिलेक्ट करें। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिलेक्ट करनी है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करें। तो वो जो डिसिप्लिन है आपको वो आपने केयरफुली सिलेक्ट करना है। इफ़ any candidate accepts admission in technology discipline other than the first choice of discipline and is satisfied with the same must submit an affidavit with the 3 working days from the date of display of such list. It must be clearly mentioned that the applicant is satisfied with the awarded of discipline and discipline technology shall not be changed at any point. जो आपको डिसिप्लिन मिलेगा उसके बाद उसको आपने एक एफिडेविट भी जमा कराना है 3 दिन के अंदर, कि आप ऐसा ना हो कि 1 महीने के बाद फिर आप एप्लीकेशन दें कि हमें डिसिप्लिन चेंज करना है। एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्स टू डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब्ड यूनिवर्सिटी फ़ी विद इन द ड्यू डेट। हाँ एडमिशन आपका हो गया है लेकिन आप फीस पे नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? If a candidate fails to deposit an admission fee within the due date, the seat shall be allotted to another candidate on merit at a later stage. If the candidate reports for the admission that may be considered for admission against the leftover seats, the respect discipline choices of technology before the closing date of admission. हाँ तो अगर आप एक कैंडिडेट की एडमिशन हो रही है लेकिन वो नहीं आ रहा तो मेरिट के बुनियाद पे जो अगला कैंडिडेट होगा उसको सीट दी जाएगी। Display of list of selected candidates. The list of selected candidates under all disciplines shall be displayed on the university website and main notice board. The admission list in each discipline announced by the university is provisional. In case of identification of mistakes, it shall be rectified. Closing of admission. The admissions for the session of 2025 will be closed at I think 31st March is the closing date. लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 25 मार्च 2025, और इसके साथ साथ जो एंट्री टेस्ट होगी वो होगी 15 अप्रैल 2025। Candidates for a discipline which is not first choice may request to switch the category from open merit to self finance. अगर आपके जो सिलेक्टेड फर्स्ट चॉइस है उसमें एडमिशन नहीं हो रहा तो आप मेरिट की बजाय सेल्फ फिनांस पे भी स्विच कर सकते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू फिल एंड सबमिट प्रिस्क्राइब्ड एनरोलमेंट फॉर्म। The selected candidates will have to fill and submit prescribed enrollment form duly signed and completed by all means of enrollment without having an enrollment card.
कैंसलेशन विथड्रॉल ऑफ एडमिशन, कैंसलेशन अगर आप वायलेट करेंगे या कोई भी जो रूल होगा वो तोड़ेंगे तो आपकी एडमिशन रद्द की जाएगी। द एडमिशन कमेटी में कैंसिल एडमिशन। The students who remain absent continuously for 4 weeks from the date of commencement of classes without information to authorities concerned, his admission shall be cancelled automatically. 2 complete semesters consecutively. पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहले 4 वीक्स हैं अगर उसमें आप हाजिर नहीं हो रहे तो आपकी एडमिशन ख़त्म की जाएगी। और दूसरा कि अगर आप 2 कंप्लीट सेमेस्टर नहीं आ रहे, 2 कंप्लीट सेमेस्टर्स, तो आपकी एडमिशन विदाउट एनी नोटिस ख़त्म की जाएगी। इन केस ऑफ एनी डिसिप्लिन और मिस इंटरप्रिटेशन द डिसीजन ऑफ एडमिशन, जो भी होगा एडमिशन कमेटी का जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। Change of program. Enrolled students who wish to change their academic program must submit an undergraduate change of program request within 2 weeks from the enrollment. अगर आप चॉइस ले रहे हैं डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन की, फिर आपको पता चल रहा है कि ये आपके स्किल्स या आपकी नॉलेज या आपके इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं है, तो आप विद इन 2 वीक्स चेंज ऑफ प्रोग्राम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। Discipline change of program will be allowed within discipline where first year has been made common. Students successfully clearing the first year with mandatory of 2 out of 2.2 to 2.5 GPA with no F. Same examination policy of Sakhrai University is followed, as the VC of this university was the registrar of Sakhrai University. जो सखराब यूनिवर्सिटी में एग्ज़ामिनेशन पॉलिसीज़ हैं वही फॉलो हो रही हैं। अगर पहले साल में आपको एफ़ लगती है तो आपकी एडमिशन ख़त्म की जाएगी। द स्टूडेंट्स मस्ट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिज़ायर्ड प्रोग्राम। द रिक्वेस्ट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ करंट एंड न्यू एकेडमिक डिपार्टमेंट्स। सही। स्टूडेंट विशिंग टू चेंज मेजर शुड डिस्कस विथ एडवाइज़र। Students should gain the acceptance of new academic program to prior disengaging from the current one. अभी जो मेन सवाल आई विल शेयर थ्योरेटिकली कि आप प्रैक्टिकल ये कैसे एडमिशन्स में अप्लाई करें, और इसके साथ साथ मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिस पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे लॉगिन होता है, कैसे क्या लिखना होता है, स्टेप बाय स्टेप हर एक जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वही। इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूंगा जल्दी वीडियो, ताकि आपको कोई मुश्किलात ना फेस हो। स्टेप जो 2 है आपका साइन इन करना है। कंप्लीट योर एप्लीकेशन प्रोसेस गाइडलाइंस टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइडेड एट ईच स्टेप। स्टेप 3 फील्ड्स मेंशन्ड आर मार्क्ड विद स्टार आर मैंडेटरी टू फिल, रेस्ट आर ऑप्शनल। Download your challan from once application is complete, 1500 challan rupees. Deposit challan fee to any branch of Allied Bank. Upload a scanned copy of paid challan on admission portal. Step 7 download and print your admission form and send it to university by courier. हाँ, अभी आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, लेकिन फिर वही जो फॉर्म है आपको डाउनलोड करना है और वही प्रिंट करा के फिर आपको जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वो फॉर्म भेजना है। आल्सो प्रिंट योर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड भी वहाँ से ही जनरेट हो जाएगा चालान जमा कराने के बाद। 9 रिपोर्ट एट द वेन्यू एट द गिवन टाइम एंड डेट। उसके बाद जो एडमिट कार्ड में आपका दिया हुआ है टाइम, उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट में अपीयर हो। ओरिजिनल CNSE या बी फार्म आपने लाजमी लेकर आना है। अप्रूव्ड स्कॉलरशिप्स इन द आरोड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड हेरिटेज सिंध। दीज स्कॉलरशिप्स आर अप्रूव्ड फॉर द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उनके लिए ये स्कॉलरशिप्स हैं, वो इनमें अप्लाई कर सकते हैं अलग से। इनकी स्कॉलरशिप्स की अलग से वीडियोस बनी हुई हैं रती एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल पे, और कुछ की नहीं बनी हुई वो भी जल्द बना के अपलोड करूँगा। जैसे ही कोई भी स्कॉलरशिप्स आती हैं वो मैं अपलोड करता रहता हूँ, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स उस स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा सकें। नंबर 1 कायद-ए-आज़म अलीगढ़ ट्रस्ट स्कॉलरशिप। नंबर 2 दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप, दिया पाक स्कॉलरशिप। नंबर 3 पाकिस्तान बैतुल माल एजुकेशन फाइनेंशियल असिस्टेंस।
Number 4, Sindh Educational Endowment Fund Trust Scholarship. And number 5, applications for the Baba Guru Nanak Scholarship Program. Number 6, Punjab Educational Endowment Fund Scholarship. Number 7, Global Undergraduate Semester Exchange Program, UGRADE. Number 8, Scotland Pakistan Scholarship for Young Women and Girls Bachelor's Program. Number 9, Al-Falah Scholarship Scheme. Number 10, FFC Sonaward of Farmers Scholarship Scheme. Number 11, Balochistan Education Endowment Fund Scholarship. Number 12, Russian Government Scholarships. Number 13, Amora Ministry of Religious Affairs Pakistan Military Welfare Fund Scholarships only for non-Muslim students. Number 14, Higher Education Commission Undergraduate Scholarships for the students of coastal regions of Balochistan, Gwadar, Laswela, Hab, Kech, Turbat and Awaran districts. Pakistan Petroleum Limited, PPL scholarships for higher professional education. Punjab Education Endowment Fund Arts and Cultural Scholarship. Khairpur Need Cum Merit Scholarships for Khairpur district domiciles only. Al Khidmat Academic Scholarships Program. इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स और भी होती हैं, नीड कम मेरिट स्कॉलरशिप या मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप, और इसके साथ साथ आपकी जो सिंध गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स होती हैं या फिर आपकी किसी रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स की भी स्कॉलरशिप्स होती हैं, और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से जो भी स्कॉलरशिप्स हैं वो भी आपको मिल सकती हैं, लेकिन उन स्कॉलरशिप्स में आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने एडमिशन ले ली और स्कॉलरशिप में एलिजिबल हो गए, नहीं, उनके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए या कोई भी कमेंट है या कोई भी क्वेश्चन है आपको अरोड़ यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहुल खैर, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।